Hello, Assalamualaikum. This is Parvez Solanki, and today we're starting with the new topic, that is pronoun. Usually it comes after the noun, but before coming to the lecture, please subscribe my channel and also inform your friends who are interested in learning grammar. So after now, today we are going to discuss what pronoun is. So what is pronoun? Definition is quite simple. It is used in place of noun. What is pronoun? Pronoun is something that is used in place of noun. How a pronoun can be used in place of noun, we will be discussing later on. First of all, let us discuss how many kinds of pronoun are there in English. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे kinds of pronoun. So there are 5 kinds of pronoun जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. Subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive pronoun and then reflexive pronoun. These 5 kinds. अब देखें subjective pronoun क्या है. I, we, you, they, he, she, it को subjective pronoun कहा जाता है. अच्छा, हम इनको subjective pronoun क्यों कहते हैं? It's very simple. Basically I, we, you, they ये प्रोनाउन ही है, पर क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए हम इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. लाइक सी द सेंटेंस, आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस. तो यहाँ पे जो बेसिकली आई है ये एक प्रोनाउन है, लेकिन मैंने इस आई को किसकी जगह पे इस्तेमाल किया है? सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है. दैट्स व्हाई आई वुड कॉल इट प्रोनाउन बट सब्जेक्टिव प्रोनाउन. व्हाई सब्जेक्टिव प्रोनाउन? बिकॉज हम इनको सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि इस सेंटेंस को देखें, we shall bury the dead, या he can ask questions and she may report the crime. So when we talk about I, we, he and she, they all are pronouns, पर क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. इनसे हम ज़्यादातर सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं. So hopefully it's clear. I, we, you, they, he, she, it, subjective pronoun. Next topic, जो next पे है इसको हम कहते हैं objective pronoun. Now what is objective pronoun? It's again very simple. अगर हम subjective pronoun को subjective pronoun इसलिए कहते हैं क्योंकि ये subject की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो आप automatically समझ जाए कि objective pronoun वो होगा जो object की जगह पे इस्तेमाल होगा, यानी कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? मेन वर्ब के बाद. So see, there are sentences just like they will inform me. अगर मैं यहाँ पे यूँ लिख दूँ they will inform I, this sentence would be incorrect. क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे कि हम usually वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी को इस्तेमाल करेंगे. I cannot choose I here. In the same way, अगर मैं कहूँ you can select we. If I say you can select we, this is wrong sentence. Why? Because you see select is a main verb और आपको पता है वर्ब के बाद क्या आता है? Object. But when we talk about we is not objective pronoun, it is subjective pronoun. तो हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? us इस्तेमाल करना पड़ेगा. In the same way, they must help him, and the boss has fired her. So these are the 4 sentences related with objective pronoun. Now, how to understand subjective and objective pronoun? Not much difficult, very easy. जो subjective pronoun होते हैं, इनसे हम sentences start करेंगे, और जो objective pronoun होते हैं, ये हमेशा main verb के बाद आएंगे. So अब हम बात करेंगे possessive adjective की. Possessive adjective like my, your, their, his, her, its. But हम इन दोनों को possessive adjective और possessive pronoun को थोड़ा collectively पढ़ने की कोशिश करेंगे. Like one could ask this question: if a topic is pronoun, then why this possessive adjective is here? ये इसलिए है क्योंकि ये adjective की भी kind है. ठीक? But when we talk about possessive pronoun, तो sometimes what happens that the students actually feel lot of difficulty when trying to understand the difference between my and mine, and you and yours. So usually if you ask people कि भाई my और mine में, our और ours में क्या difference है, तो they will get confused.
So if I ask you the same question, my और mine, our and ours, your और yours में क्या फर्क है? तो इसका अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो ये समझ जाए कि हम my over your there his her को possessive adjective कहते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं possessive adjective तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे। मिसाल कैसे देखें, जो adjective है, adjective के बाद हम यूजुअली, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन यूजुअली एडजेक्टिव के बाद हम जो है वो नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज अ गुड पर्सन, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दे आर बिजी पीपल। सो अब आपको पता है कि अगर मैं कहूँ कि यू आर बिजी, बिजी इज एडजेक्टिव, पीपल क्या है, नाउन है। यू आर अ गुड पर्सन, गुड एडजेक्टिव है और पर्सन क्या है, नाउन है। तो हम ज्यादातर एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए ही कहा जाता है कि मैं जब भी माय, अवर, यूर, देयर, हिज, हर का इस्तेमाल करूंगा तो इनके बाद मुझे लाजमन नाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा पजेसिव प्रोनाउन माइन, अवर्स, यूर्स, देयर्स, हिज और हर्स की, तो मुझे इनके बाद नाउन इस्तेमाल करना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दिस इज माय, इफ आई सिंपली से दिस इज माय, तो ये गलत सेंटेंस बन जाएगा। जब भी मुझे माय इस्तेमाल करना पड़ेगा और यूर, देयर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मुझे लाजमन इसके बाद नाउन लगाना है। तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज माय मार्कर। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ दिस इज माइन मार्कर, रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? एज आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन माय एंड माइन, आर एंड यूर एंड यूर्स इज दिस। आप जब भी पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे आप इनके बाद नाउन लगाएंगे, और जब भी पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो इनके बाद नाउन नहीं आएगा। ये बात ज़हन में रखें, मैं कभी भी नहीं कहूँगा दिस इज योर्स बुक, नो। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ दिस इज योर बुक। सो दिस इज अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। थोड़ा मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। नाउ सी द सेंटेंसेस हियर, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज माय बुक। So my is possessive adjective, and you see after that I use noun. In the same way, where was her purse? So when I talk about where was her purse, तो अब मैंने यहाँ पे her लगाया है और इसके बाद आप देखें noun है Hyderabad is a city, तो R is possessive adjective and I have used noun after that. So this is called possessive adjective. And again there are sentences related with possessive pronoun. अब देखें, this book is mine. Why? Because I can't say this is mine book. So this book is mine is the right sentence. या मैं ये भी कह सकता हूँ this is mine. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम possessive pronoun के बाद ism का इस्तेमाल नहीं करते। In the same way, you see, your marks are better than hers. अब मैंने यहाँ पे hers लिखा है, मैं इस सेंटेंस को यूँ भी लिख सकता हूँ, your marks are better than her marks। तब भी ये सेंटेंस है ये। लेकिन अगर मैं possessive adjective यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ पे possessive pronoun लगाना पड़ेगा और मैं कहूँगा your marks are better than hers। In the same way, Hyderabad is us। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, Hyderabad is a city, this is incorrect sentence। Why this is incorrect sentence is I already said कि हम possessive pronoun के बाद noun नहीं लगाते। अगर मैं इस तरह लिखूँ then it's fine, Hyderabad is a city। लेकिन मुझे जब भी ours लगाना पड़ेगा I am not supposed to use noun after that। So this is all about subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective and possessive pronoun। Last but not the least, अब हम डिस्कस करेंगे reflexive pronoun। reflexive pronoun क्या है? जैसे myself, ourselves, yourself, या selves, themselves, himself, herself and itself। reflexive pronoun क्या है? It's very easy to understand। याद रखें, अगर आप ग्रामर समझना चाहते हैं और अगर आप उनके कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं मोस्टली यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट होता है यूजुअली उनके हेडिंग्स में होता है। जैसे मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बताया, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करे। फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो। पोजीशन, मालकी दिखाना, मिल्कियत दिखाना, जैसे माय या रिलेशनशिप दिखाना। तो possessive adjective, possessive pronouns show something, relationship or property, something you own or you have certain relationship with something। In a same way reflexive pronoun। अब देखें
reflexive has been taken from the word reflex. अब ये रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? आप देखें, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें लगता है ना कि एक जिन जो है वो शीशे के अंदर है, दूसरा बाहर है, तो समथिंग लाइक दिस, इट्स एक्चुअली योर रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू वांट टू मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन सेकंड टाइम इन द सेंटेंस, क्योंकि हम डूअर ऑफ द एक्शन को सब्जेक्ट को हम मेंशन करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन की मदद से फर्स्ट टाइम. अगर आप उसको दूसरी मर्तबा मेंशन करना चाहेंगे तो यू आर सपोज्ड टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर. अब जैसे कि देखें, ही इज कैरिंग द बर्डन. अगर मैं ये सेंटेंस यहाँ तक लिखूं फिर भी ठीक है, ही इज कैरिंग द बर्डन. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज कैरिंग द बर्डन हिमसेल्फ, तो ही को मैंने मेंशन किया यहाँ पे पहली मर्तबा, लेकिन जब मैंने इसको दूसरी मर्तबा मेंशन करना चाहा, आई टुक द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, जिस किस्म का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा आप वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई के साथ आप माई सेल्फ लगाएंगे, वी के साथ हर सेल्फ लगाएंगे, शी के साथ हर सेल्फ और ही के साथ हिमसेल्फ लगाएंगे. आप कभी भी ये नहीं कहेंगे शी वाज लाफिंग हिमसेल्फ या ही वाज डांसिंग हरसेल्फ. नाउ जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा उसी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है. नाउ सी दिस सेंटेंस, वी शैल डिफीट देम आवरसेल्व्स. अब देखें, वी आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इज आवरसेल्व्स. दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज वी शैल डिफीट देम आवरसेल्व्स. Or I can go out myself. Yeah, she was crying herself. So when I talk about himself, ourselves, myself and herself, they are known as reflexive pronoun in English. Why do you use reflexive pronoun in the sentence? Because as I said, if you want to mention the doer of the action second time in the sentence. So hopefully यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी. लेकिन अब थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है ना, तो अब जरा उस पे हम बात करेंगे इस लेवल में. देखें, जब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि यू एक जैसे नहीं, मतलब यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है. तो अब हम कैसे समझेंगे कि अगर यू सेंटेंस में आ जाए, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? इट्स वेरी इजी. अगर शुरू में होगा सब्जेक्ट होगा, बाद में होगा मेन वर्ब के बाद में होगा तो ऑब्जेक्ट होगा. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सेंटेंस, जैसे यू आर अ टीचर. फाइन, यू इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन हियर एंड इफ आई से they will invite you, so they will invite you. अब देखें, यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है. दिस इज subjective pronoun here and it is objective pronoun here. फिर हम थोड़ा और जरा इस पे आ जाए, हर एंड हर पे. मिसाल के तौर पे जो हर है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और हर है जो पजेसिव एडजेक्टिव भी है. पजेसिव एडजेक्टिव की अगर आपको टिप याद है तो याद रखें, जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद नाउन आएगा. तो जब हर के बाद नाउन आ जाए तो हर को पजेसिव एडजेक्टिव कंसीडर किया जाए, और जब हर किसी मेन वर्ब के बाद आ जाए और इसके बाद कोई और नाउन नहीं है, इन केस इफ इट इज नॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट तो फिर ये ऐसा हो जाएगा. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ ना, आप जरा इसको समझिएगा. दे हैव encouraged her or they have encouraged her brother. See the difference. They have encouraged her. Her is objective pronoun. They have encouraged her brother. Here her is actually your possessive adjective. तो her और her objective pronoun और possessive adjective ये जरा डिफरेंस है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें. नेक्स्ट अब आप देखेंगे यहाँ पे इट एंड इट है, लाइक इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है. इसको हम कैसे समझेंगे? इसको आप इस तरह से समझते हैं जैसे कि इट इज that day today. For suppose if I say it is that day today and you don't
like it. You see, I have used it here, I have used it here. यहाँ पे जो है subjective pronoun है, यहाँ पे जो है वो आपका objective pronoun है। And then यही कुछ हमें his और his में भी मिलता है। मतलब his जो है वो possessive adjective है, his जो है वो possessive pronoun है। अब ट्रिक क्या है आपको पता है, जब his के बाद noun आ जाएगा तो ये आपका possessive adjective कहलाएगा, और his के बाद अगर noun नहीं आएगा तो ये आपका possessive pronoun है। सेंटेंस तो जिस तरह होगा कि this is his car और this car is his। तो जब मैं कहूँ this is his car तो his के बाद noun आ गया, possessive adjective, this car is his, this is your possessive pronoun। So hopefully you have understood what actually the pronoun is. We discussed times and somehow हम इनको sentences में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो इस definition की बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि pronoun जो है वो इसम की जगह कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो now this would be our next topic। So use of pronoun in place of noun। हम ज़मीर को इसम की जगह कैसे इस्तेमाल करेंगे? So see these 4 sentences। A boy was weeping yesterday. Asma has joined the new company. Salim and Amjad will not accept him, and girls were dancing। So when you see a boy, Asma, Salim, Amjad and girls, ये सब के सब क्या है? नाउन है। हम क्या इस्तेमाल करेंगे अब इनकी जगह? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? एक सेंटेंस इस तरह, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, a boy was weeping yesterday, लेकिन मुझे अगर इस सेंटेंस को यूं लिखना पड़े कि he was weeping yesterday, this is also the right sentence। अब he जो है ये आपका प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन को मैंने ये जो नाउन है boy इसकी जगह पे इस्तेमाल किया है। In the same way, Asma has joined the new company। अब Asma जो है नाउन है, अब इसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन आएगा आप खुद मुझे बता देंगे। हम Asma की जगह क्या लिखेंगे? She has joined a new company। In the same way, Salim and Amjad will not accept him। तो हम यूं नहीं कहेंगे he and he will not accept him, हम यहाँ पे लिखेंगे they will not। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। and girls were dancing, तो हम यूं भी नहीं कहेंगे she, अगर 3 है तो कहेंगे she were dancing, अगर 4 है तो कहेंगे she and she dancing। no, हम यहाँ पे they का इस्तेमाल करेंगे और हम क्या कहेंगे कि they were dancing। So you see, अब यहाँ पे मैंने noun को इस्तेमाल किया है किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर। that means I use subjective pronoun there। next objective pronoun। अब देखें सेम नाउन ही है, यहाँ पे भी मैंने boy लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? you will arrest a boy, and again same I have used Asma, then Salim and Amjad। remember this, I can change names here। मैं यहाँ पे boy की जगह ये यूं भी लिख सकता हूँ कि you will arrest a thief, you will arrest a person, you will arrest a criminal। तो ये सब के सब नाउन हो जाएंगे ना। तो आपकी मर्जी है कि आप बड़े आराम से इन नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगा सकते हैं। जैसे you will arrest a boy भी ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे तो होगा him। so you will arrest him, तो ये जो him है मैंने नाउन boy की जगह पे इस्तेमाल किया। in a same way they might discourage Asma, तो अब आपको पता है यहाँ Asma की जगह हर आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे सलीम और अमजद की जगह पर क्या लगा देंगे? them लगा देंगे। we can invite them। last again but not least, possessive adjective। हम possessive adjective क्यों इस्तेमाल करते हैं? नाउन की जगह कैसे इस्तेमाल होंगे वो देख लीजिएगा। they have stolen boys watch। अब देखें boys watch, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा? they have stolen his watch। ठीक है, इसी तरह से you can join Asma's party। हम कह सकते हैं you can join her party, and in the same way he will collect teachers name। now this is something important, just like
यहाँ पे अपॉस्ट्रफी एस के बाद आई। अगर यू होता तो मैं यूँ लिखता ही विल कलेक्ट टीचर्स नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अपॉस्ट्रफी यूज की है, ये अपॉस्ट्रफी जो है वो एस के बाद है, दैट मीन्स इट्स प्लूरल। तो जब मैं इसको चेंज करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, ही विल कलेक्ट देयर नेम्स। टीचर्स इज एक्चुअली प्लूरल, तो हम देयर को पॉसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड यू नो हाउ प्रोनाउंस कैन बी used in place of noun। अच्छा, दूसरी चीज़ which is very important, most of the students ask के हम pronoun की जगह इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, तो सिंपल आंसर इसका ये है, to avoid repetition, to avoid vagueness। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ noun लिखेंगे तो फिर वो थोड़ी रिपीटेशन हो जाएगी और एक बोर्डम सा क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा वसीम gets up early in the morning, Wasim does this and then Wasim does this and then Wasim does this, if I keep on saying Wasim and Wasim and Wasim, so it looks odd, but again it would be the repetition as well। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि परवेज इज टीचिंग स्टूडेंट्स, आई वुड से I am teaching you or I am teaching them। So this is about pronoun and styles, लेकिन pronoun अभी खत्म नहीं हुआ, there is something more that we will be learning। Now अब हम आगे चलेंगे प्रोनाउन में ही, something called personal pronouns। So what are personal pronoun? ये जो 5 काइंड्स हमने सीखे, इन सबको सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इनको कहते हैं कि ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, तो हमने सीख लिए, दोबारा सीखने की क्या जरूरत है। तो हम इनमें कुछ डिफरेंट सीखेंगे अब, लाइक सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इनको हम दोबारा क्यों सीख रहे हैं, इसकी वजह ये है कि आई जो है इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन आई का एक और नाम भी है जिसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। सो इफ यू नो दैट आई इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड इफ समबडी आस्क यू दैट व्हाट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और आप परेशान हो जाए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, ग्रामर में कभी सीखा ही नहीं, तो ये समझ लें कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई को कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी को कहा जाता है, यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दे को हम थर्ड पर्सन प्लूरल बोलते हैं, ही शी इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ जस्ट लाइक आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, तो आई इज अ फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर मैं कहूँ वी आर लर्निंग इंग्लिश, दैट मीन्स अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, तो दैट्स व्हाई वी इज फर्स्ट पर्सन। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं तो दैट्स व्हाई इट इज प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई मैं अकेला हूँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। सो व्हेन आई से यू, द पर्सन हु इज वाचिंग मी नाउ, लाइक you is second person। Why it is a second person? Because I is a first person, obviously you will be the second, but if I talk about somebody else like he or she, that would become third person। Why that he she is third person? Because I is the first person, you the second person, and if I say he, that would become the third person, or she third person मगर singular। लेकिन अगर मैं कहूँ they, तो I is the first person, you is the second person, and they is the third person। Why they is the third person? Because it's I, you, 1, 2 and then 3, ठीक है, third person but plural, इसे कहा जाता है। तो now if anybody asks you what is first person singular, याद रखें आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि I is only first person singular। No, अगर कोई आपसे कहे what is first person singular, तो आप कहेंगे I, me, my, mine and myself। ये जो 5 हैं ये सब के सब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाएंगे। अगर इसी तरह से कोई पूछे व्हाट इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो आप सिर्फ वी कह के जान मत सुनाए, आप कहेंगे वी, अस, अस एंड और एंड अरसेल्व्स, इनको हम जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहते हैं। तो बस इजी सिर्फ ये समझाना था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, ज़हन नशीन रखें। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल है क्योंकि यू एक को के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल एंड ही शी को थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। उसके बाद ये कुछ 3 सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन।
तो इसका मतलब क्या है, ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई फ्रेंड मतलब वो मेरा दोस्त है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसकी यूँ बनेगी कि वो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, ठीक है। इन अ सेम वे मैं ये कहूँगा ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वेदर आई से कि ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन या ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ वन एंड सेम थिंग। अब एक चीज़ ज़रा ज़हन नशीन रखें यहाँ पे कि मैं जब भी वन ऑफ इस्तेमाल करता हूँ तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। आमतौर पे स्टूडेंट से कि सर यू आर वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, तो ये सेंटेंस गलत है। हम क्या कहेंगे, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। या अगर आपको कोई भी खिलाड़ी पसंद है तो आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि someone is one of my favorite player, तो आप क्या कहेंगे, someone is one of my favorite players। तो जब भी हम one of इस्तेमाल करते हैं तो one of के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। मतलब मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मोहनजोदड़ो is one of the oldest city in the world, मैं कहूँगा मोहनजोदड़ो is one of the oldest cities in the world। तो वन ऑफ के बाद नॉट ओनली वन ऑफ, एवरी वन ऑफ या ईच ऑफ अगर हम कहेंगे उनके साथ भी हम प्लूरल नाउन कहेंगे। मिसाल अगर मैं कहूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, मैं ये नहीं कहूँगा ईच ऑफ स्टूडेंट, नो, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स। तो वन ऑफ, एवरी वन ऑफ और ईच ऑफ के बाद हम नाउन प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखें, दिस इज हर बुक, इसका मतलब है ये इसकी किताब है, दिस इज अ बुक ऑफ हर्स, ये इसकी किताबों में से किताब है, एंड अगेन दिस इज वन ऑफ हर बुक्स। सो ये सीखना था। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। होपफुली यू मस्ट हैव लर्नड इट, इफ नॉट देन ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन व्हाट आर एम्फेटिक प्रोनाउंस एक्चुअली। एम्फेटिक प्रोनाउन हम इनको कहते हैं जस्ट लाइक माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने सीखे थे इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। इफ यू रिमेंबर द लास्ट जो हमने टेबल में बनाया था आखिर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो गोया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही बात है, द आंसर इज नो, क्योंकि इनका यूज डिफरेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने आप को सेंटेंस में दूसरी मर्तबा मेंशन करें। एम्फेटिक मतलब आप इस वर्ड से समझे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर आपको ग्रामर कॉन्सेप्चुअली समझनी है तो ज़्यादातर उनके कॉन्सेप्ट्स उनके हेडिंग में या टॉपिक नेम में होते हैं। जैसे मैं इसे कहता हूँ एम्फेटिक, व्हाट इज एम्फसाइज, व्हाट इज इंटेंसिटी। हम जब कहते हैं ना समथिंग एम्फसाइज देते हैं जब किसी भी बात पे, तो हम उस बात पे शिद्दत से उसका इजहार करते हैं, जोर से हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दैट्स व्हाई एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन तब बनेगा जब आप स्पोकन में किसी चीज को बड़ी शिद्दत से इजहार है। जैसे अगर मैं कहूँ ही विल बीट देम हिमसेल्फ, तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन जब मैं हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो इसकी एक वजह ये होगी कि ये फौरन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो जब भी हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, अवरसेल्फ सब्जेक्ट के बाद आ जाए, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे कि he himself will beat them, जैसे I can go there myself and I myself can go there। तो यहाँ पे भी myself है, यहाँ पे भी myself है, यहाँ पे myself आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और यहाँ पे आपका एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। Keep this thing in your mind कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद में आएंगे, फौरन बाद में आएंगे। समटाइम्स हम उनको आखिर में भी लिखते हैं, लेकिन जब आप उनको आखिर में लिखते हैं जैसे she has faced the trouble herself, तो यहाँ पे herself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रेस का मार्क दे दूंगा तो आप समझ जाएं कि इसको एज एम्फेटिक प्रोनाउन भी यूज किया गया है। लेकिन हम जनरली एम्फेटिक प्रोनाउन को फौरन सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो दैट बिकम्स योर एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। So hopefully it's clear, was not much difficult। अब हम जरा इन चार सेंटेंसेस पे आते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हम जब भी लिखते हैं कोई मैसेज वगैरह
तो हम क्या कहते हैं, इट्स नाइस, इट्स गुड, या यहाँ से देखें a tree has fallen its leaves, या a dog is biting its tail। तो ये चारों के चारों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है। अच्छा, आप क्यों गलत है, इसकी वजह क्या है, इस दैट्स वेरी सिंपल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि याद रखें जो इट है, आपको मैंने पहले भी बताया ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, और इट जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। लेकिन जब हम इसको इट्स लिखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव में तो वो इस तरह होता है। आप यहाँ पे देखेंगे इसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं है। याद रखें, हम जब भी इट अपॉस्ट्रोफी एक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज या इट वाज, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस क्यों गलत है, इट्स नाइस, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट्स नाइस। अच्छा, इट्स नाइस का मतलब क्या होता है, इट इज नाइस, या मैं यूं भी लिख सकता हूं, इट वाज नाइस। सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे हम लिखते हैं ना आई एम, तो ये अपॉस्ट्रोफी इसका मतलब होता है आई एम लाइक दिस, राइट। नाउ इसी तरह से इट्स गुड, व्हाई दिस इज नॉट सेंटेंस, क्योंकि जब हम इट्स लगाएंगे तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी आएगी, इट्स गुड, और इट्स गुड का मतलब होता है इट इज गुड या इट वाज गुड, फाइन। अब ये दो सेंटेंसेस क्यों गलत हैं आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने इट के साथ अपॉस्ट्रोफी लिखा है, दिस वन, ये वाला इट ना, जिसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, a tree has fallen its leaf is wrong, क्योंकि इट के साथ मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, a tree has fallen, it is leaves। अगर हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो इसका मतलब है it is, that's why सही सेंटेंस क्या होगा, a tree has fallen its leaves। The same way a dog is biting its tail, no, हम यहाँ पे इट्स लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। सो होपफुली इट्स क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पर। इस कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट आपको पता है मतलब गैर वाजिब। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे वन 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 वन, बॉडी बॉडी बॉडी, थिंग थिंग थिंग, तो ये हाफ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कंप्लीट हम मैं नहीं बल्कि आप खुद करेंगे। जैसे कि हम क्या लिखते हैं, वन के साथ सम, समवन, फिर नो वन, उसके बाद एनीवन, और हम क्या लिखेंगे फिर एवरीवन। इन अ सेम वे बॉडी के साथ क्या आएगा, समबडी, फिर क्या लिखेंगे नबडी, फिर क्या लिखेंगे एनीबडी, एंड देन एवरीबडी। यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एंड देन एवरीथिंग, ऑल दैट etc। इन सब को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब हम इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गैर वाजिब है। देखें, अगर मैं कहूँ कि ही इज कमिंग, आपको पता है लड़का आ रहा है, शी इज कमिंग, आपको पता है लड़की आ रही होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ समवन इज कमिंग, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो that's why they are known as indefinite pronoun। Why indefinite pronoun? When you are not sure कि the doer of the action कौन है, तो हम वहाँ पे usually indefinite pronoun का इस्तेमाल कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि someone subject की भी जगह आएगा, तो object की भी जगह आएगा, no problem with them। जैसे someone will change everything, तो यहाँ पे मैंने someone को subject की जगह पे यूज किया है, you can help someone, और यहाँ पे मैंने इसको object की जगह पे इस्तेमाल किया है। पर अगर आपको याद हो, मैं अगर यूं लिखूं कि he will change everything, लेकिन मैं इस तरह नहीं कहूँगा you can help he, तो that's why they are indefinite। क्यों? क्योंकि जो indefinite pronoun है ये subject की जगह भी आएंगे, object की जगह भी आएंगे, possessive कैसे नहीं हो जाएगा ना। somebody will bring peace to the world, somebody will bring peace to the world, peace into the world, तो somebody is what, you are इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। याद रखें, हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब जब भी समवन, नो वन इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएंगे। सिंगुलर वर्ब मतलब इज, वाज, और प्लूरल वर्ब मतलब आर, वर, एंड हैव। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
दो, दी, दाई एंड दाई सेल्फ, ये क्या है? आप उम्मन फर्स्ट ईयर और इंटर की पोएट्री में ये अल्फाज देखते होंगे ना, दो, दी, दाई, दाई एंड दाई सेल्फ, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि ये किस बला का नाम है। दे आर वेरी इजी, दे आर द ओल्ड फॉर्म ऑफ यू। ठीक है, दो मतलब यू, सब्जेक्ट प्रोनाउन, दी मतलब यू, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दाई मतलब यूर, पजेसिव एडजेक्टिव दाइन मतलब यूर्स, पजेसिव प्रोनाउन और दाई सेल्फ का मतलब होता है योरसेल्फ, reflexive pronoun. So though, the, thy, thine, thyself, they are considered as the old form of the you. If I say thou are good, matlab you are good. I like thee, matlab I like you. And though need to die, though need to change thy habits, matlab you need to change your habits. Okay? और हम इनकी जगह दूसरी जो चीज इस्तेमाल करते हैं, कभी वन भी कहते हैं ना, one must do one's work. Okay? Like this. So hopefully it's clear. That's all about pronoun. इसके बाद जो हम सीखेंगे वो adjective होगा. No, adjective. Yes, adjective होगा. So thank you for watching and please subscribe the channel.